ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਖਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੋੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਐਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਅਗਰ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
सो इस पंक्तियां दे विच जिहड़ा गुरु साहब जिक्र कर रहे हैं, जे फरमाए ते पाए, जिमें जिमें उहदे हुक्म दे विच कोई रहिंदा वे उवें उवें उहदी बख्शिश दा, उहदी नज़र दा पात्र बनदा है। जे उहदी हुक्म नहीं मान रहा, हुक्म अदूली कर रहा है, ते खसम विसार है ते कमज़ार वो नीवी जाता है। सानू कोई बार वाली जात नहीं दसिया गई कि कोई ब्राह्मण खत्री वैश्य जिवें जो पंडित ने सिस्टम ने समाज ने बनाई। गुरबाणी कहती है जे गुरु का हुक्म मनना में तो उची जात है, जे वाहिगुरु खसम अपने मालक को भूल गया है तो तेरी जात नीवी है। आगे कहते ने विण नावै ना ही को थाओ, कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे उहदा नामना, उहदा हुक्म, उहदा नियम, उहदा सिस्टम नहीं चलता। कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार। हे वाहिगुरु तेरा जिहड़ा कुदरत का नियम सिस्टम है वो बेअंत है, मैं उसकी की विचार करा। मैं तो एक बार भी वारिया नहीं जा सकता, उस तो कुछ वार नहीं सकता। वारन का मतलब किसी के सिर तो असीं किहड़ी चीज़ वारने आ, जिवें घर कोई ब्याह होंदा है तो असीं नोट वारने आ, दा मतलब असीं यह कहना चाहते हैं हुण ब्याह वे असीं मुंडे कुड़ी तो नोट वार के असीं यह कह रहे हैं कि मैनू सानू तुहाडे तो ਇਹ नोट वध प्यारे नहीं ने, असीं तुहाडे सिर तो वार के सुट दिते हैं। हालांकि साडा सिस्टम नहीं है, पर एक बारी मैं किसी कॉलेज दे विच मेरा कोई प्रोग्राम सी तो किसी बच्चे ने एक सवाल किया सी, क्योंकि जिहड़ा वारना शब्द है यह मुस्लिम सिस्टम तो साडे जिस खिते च असीं रहने इत्थे एंटर होया। मुसलमानों के विच मीलां वारियां जांदियां सी, उन्हां दा सिस्टम जिहड़ा है इस चीज़ की गल करदा वे। तो उन्हें मैंने पूछा कि वारना की सिखा के वारिया जाता है। मैं कहा जी वारना तो नहीं पता, पर दुनिया का सब तो बड़ा वारना सिखा दे विच होया है। कद होया संगत जी, जब गुरु साहब ने कहा सी इन पुत्रन के सीस ते वार दिए सुत चार, किस तो वारे सी? साडे सारियां तो। असी आप देखिए कि असी इस लायक हाँ कि गुरु ने साढ़े ते चार लाल वार दिते। इत्थे गुरु साहब कहते वारिया ना जावा एक बार। हे परमात्मा तेरी सृष्टि इन्नी बेअंत है, तेरी कुदरत इन्नी बेअंत है कि मैं एक बार भी इस तो वारने नहीं जा सकता। जो तुद पावै, जो तैनू पांदा है, साई भलीकार। इत्थे शब्द असीं आम तौर पर उच्चारण की गलती करते हैं, इत्थे साई कई बार बोल देते हैं। साई का मतलब हुंदा वे परमात्मा, साई का मतलब हुंदा उहदे वर्गा। जिथे दे अर्थ आणगे साई दे, साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, उत्थे उच्चारण होएगा साई। लिखिया होया सस्सा, सस्से नू कन्ना, ईड़ी, ईड़ी नू बिहारी, जो इत्थे लिखिया है, पर उच्चारण होएगा साई परमात्मा दे। इत्थे साई का मतलब है उहदे वर्गा। जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ए ते संगत जी आखिरी अर्थ हो गए। हुण असीं समझिए कि ये अक्षर जिहड़े ने साडे नाल किवें रिलेट करते हैं। जिहड़ी कुड़ी हैगी है, असी इहनूं किवें अपने नाल कोरिलेट करना है, क्योंकि 52 अखरी जिहड़ी बाणी है उहदे कबीर साहब दे एक बचन हैगा वे, वो कहते हैं ये अक्षर खिर जाएंगे, वो ये अक्षर इनमें ना है। ये अक्षर तो एक दिन खत्म हो जाएंगे कि अगर असी जो भी अक्षर लिखे एक दिन कागज ने गल जाना है, एक दिन शाही ने खत्म हो जाना है, शाही ने सुक जाना है। पर परमात्मा जिहड़े अक्षर साडे मन की धरती ते लिखदा वे वो अभेद ने। हुण असीं इहनूं समझण दा यतन करांगे कि यह बाणी मेरे नाल किवें टुटदी है। समझ दे शब्द आया सी आखरी नाम आखरी साला।
आखिरी अंत मैं आप जी दस दिते कि अखर की गल हो रही है। भाई कान सिंह नाभा जी ने अखर का जोड़ा अर्थ किया वे, एक होता है जिमें बड़ा मैं तुम लेमन लैंगुएज रोज़ाना की भाषा ही समझावा, जब असीं बर्फ लैके आने अजकल गर्मियाँ चल रही ने, बर्फ आई अगर उसको पखे थले रख दी जो थोड़ी देर पई रही है तो बर्फ की होता है खुर जाती है, खर जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अपना जोड़ा करैक्टर है बर्फ का, क्योंकि पानी 3 रूप में मिलता है, एक लिक्विड फॉर्म के जो पीने, एक सॉलिड फॉर्म के सख्त, और एक जब भाप बन के उड़ जाता है। हालांकि गुरबाणी के अंदर भी बड़ा प्यारा एक वचन है, वो इसका जिक्र आता है, जे साडा मन तरल अवस्था नहीं है, अपनी अवस्था नहीं है, कठोर है, बर्फ वर्गा कठोर है, तो बाणी कहती जिनके चित्त कठोर है से बहे ना सतगुर पास, वो परमात्मा के नेड़े जाके नहीं बैठते। एक शब्द है आम तौर पर असी जब कोई प्राणी चढ़ाई कर देंगे असीं तां पढ़ने पवन है मैं पवन समाया, ज्योति में ज्योतरा लाया, असीं बड़ी बड़ी शब्द पढ़िया। ऐसे वो अर्थ नहीं ने कि असीं समझिए कि जान वाले की गल हो रही है। जब मेरा मन बर्फ वर्गा कठोर सी, वो परमात्मा ना मिलता नहीं सी, जब हवा वर्गा सी, ख्यालों के नाल उच्चियां उडारियां दे विच सी, अपनी होमे दे विच सी, तां भी परमात्मा ना नहीं मिलता। जब मेरा मन जल का जल हुआ राम, जब मेरा मन जल वाली निर्मल अवस्था दे विच आ गया, फिर परमात्मा के नाल मिलाप हो गया, फिर संपूर्ण किया राम, कार्य संपन्न होया जिहड़ा मेरा और परमात्मा के नाल एक मिक होंदा सी। तो इस पौड़ी दे विच जिहड़ा गुरु साहब जिक्र कर रहे हैं, असीं इहनूं इस अर्थ विच भी लै सकते हैं, आखिरी नाम तेरा जिहड़ा नाम है खुरदा नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आखिरी सलाह जिहड़ी तेरी सलाह है, सिफत सलाह है, वो भी हमेशा कायम रहती है। आखिरी ज्ञान गीत गुण गा, जिहड़े तेरा ज्ञान है, जिहड़ी तेरी नॉलेज है, जिहड़ी डिवाइन विजडम है, जिहड़ी विवेक मत है। हुण जिक्र आया विवेक का, असी रोजाना जब असी अरदास पढ़ने जो असी 7 दान मंगते हैं, उन्होंने एक दान है सिखा को सिखी दान, केस दान, रहत दान, अगला शब्द की है जी विवेक दान। असी दान मंग रहे सानू विवेक दे, विवेक की है, विक बोलते हैं 2। अगर उर्दू किसी को आती हुए तो उर्दू का दूसरा शब्द है अलफ बे पे, अलफ 1 बे 2 पे 3, यह उन्होंने गिनती है। बहुत सिंपल भाषा, जिस भी अखर के नाल दूआ लग जाएगा, 2 लग जाएगा, उसकी भाषा उसकी लैंग्वेज साउंड जो असीं बोलांगे वो बब्बे नाल होएगी, जिवें 12 होर किसी अखर नाल बब्बा नहीं लगेगा। तुसीं आप जी अपने मन में पढ़ लो 11 13 14 15 16 किसी नाल नहीं, 12 एवं 22 फिर 32 42 52 62 सारे अखर जिन्हां दे नाल दुक्का लगेगा, सारियां दी जिहड़ी साउंड आएगी वो 2 बिब दी आवाज़ बब्बे की आएगी। बिब का मतलब 2, 1 का मतलब 1, विवेक का मतलब वो बुद्धि वो मत जिहड़ी मैनू 2 पहाड़ चों कट के एक अकाल पुरख नाल जोड़ती है, जिहड़ी मन की डुअलिटी खत्म करती है, उस मत को कहते हैं विवेक बुद्धि। वो मत कदी नहीं खरदी, वो मत कदी नहीं नष्ट होती, वो मत हमेशा परमात्मा के नाल जुड़ती है। आखिरी ज्ञान गीत गुण गा, आखिरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संयोग बखान। संगत जी हुण अपने नाल असीं किवें लईए, मेरा जिहड़ा शरीर है, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो बाहर है वही मेरे अंदर चल रहे हैं। असंख्य नाम असंख्य धाम, मेरे मन की धरती पे
मेरे ब्रह्मंड दे विच जिवें असंख्या नाम दे जीव हन, एवें ही मेरे मन दे विच पल पल असंख्या ख्याल पैदा होंदे ने। मेरे फुरने दे विच रोज हर वक्त नवीं हलचल हो रही ने, वो अलग अलग थावां ते ने। कदी मैं अखां दे नाल पराया तन रूप देखना वा, हो सकता है सवेरे 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के कोई गुरुद्वारे जा रहा होए, असी समझते हैं बहुत नीवी है, गुरुद्वारे नियम नाल जाता है, पर हो सकता है अजे अखां सुतियां ने। गुरबाणी इसनूं कहती है नैनो नींद पर दृष्टि विकार। जे अखां पराया रूप धन देख रही ने तो सुतियां हुई ने। हो सकता है शरीर करके असीं नजर आ रहे हैं कि असीं जाग रहे हैं, कि साडे कंन भी सुनते हैं, असीं तो गुरुद्वारे आए हैं कथा सुन रहे हैं, पर हो सकता है साडे मन करके असीं किते अपने कारोबार दे विच, घर दे विच, बच्चियां दे विच, किसी लैन देन दे विच नहीं लगे हुए। गुरबाणी कहती है सरवण सोए सुन निंद विचार। कंन ते गुरु की गल सुनते ही नहीं, कंन की करते हैं, वो तो निंदा चुगली दे विच सुते हुए ने। नैनो नींद पर दृष्टि विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार। रसना सोई लोग मिठे सार। जिहड़ी रसना है, जुबान है, वो स्वादां दे विच या किसी दी झूठी उपमा दे विच या किसी दी निंदा चुगली दे विच सुती हुई है। और सारियां दा चौधरी किहड़ा है? साडा मन। वो मन की कर रहा है? मन सोया माया विस्मार। मन माया दे विच विस्मार दे विच आनंद विच है। इत्थे मैं गल क्लीयर करदा, असीं समझदे हैं माया किते ऐ ना समझिए माया का मतलब किते धन दौलत की गल चल रही है। माया किसनूं कहते हैं? असीं आनंद साहिब की बाणी पढ़ने आ, गुरु अमरदास पातशाह जी का बड़ा पावन वचन है। वो की कहते हैं? माया की है? माया की डेफिनेशन सन देते हैं। यह माया जित हर विसर है, हर वो वस्तु जेड़ी मैनू परमात्मा तो दूर करती है, जेड़ी परमात्मा तो दूर लैके जाती है, वो की है? ये माया वो माया है जित हर विसर है, मोह उपजै। जो लालच पैदा होता की है? पाओ दूजा लाया, डुअलिटी, दो भाव दो चित, जिन्हों दूर करना से की मंगने सी? विवेक बुद्ध, जिहड़ी दो और एक दे विच फर्क मिटा के मैनू दो तो हटा के एक नाल जोड़ती है। सारी गुरबाणी संगत जी आपस दे विच कोरिलेटेड है, एक दूसरे नाल जुड़ी है। सिर्फ लोड़ है गुरबाणी नू अपने नाल किवें जोड़ना है। जे असंख्या नाम असंख्या थाम दे जीव हन ते मेरी जिंदगी ते, मेरी लाइफ ते, मेरी अवस्था ते इहदा की प्रभाव है? असी अंदर इसनूं लैके जाइए, जिवें बाहर असंख्य नाम असंख्य थाम दे जीव हन, मेरे इस पिंडे दे विच, मेरे मन दे विच असंख्या प्रकार के ख्यालात चल रहे हैं, असंख्या ही मेरे जज्बात चल रहे हैं। अगम अगम असंख्य लोग मैं पहुंचना तो चाहना वा परमात्मा वाल, पर अपने मंदे ख्याल करके वो परमात्मा अगम हो रहा है। मेरे ख्याल दुर्मत के विच पै के उस परमात्मा नाल मिलन तो मैनू रोक रहे हैं। असंख्य कहे सिर पार हुए, अखरी नाफ अखरी साला। फिर की करना है? मैनू वो ख्याल, वो विचार, वो बाणी, वो प्रभाव मैनू अपने अंदर लैके जाना है, जिहड़ा मेरी और परमात्मा दे विच नेड़ता लैके आए। जिवें जिवें असीं परमात्मा दे गुणां नूं ग्रहण करांगे। गाना का मतलब केवल हारमोनियम ढोलकी नाल गाना नहीं है। अगर गुरबाणियां कह रही है गुण कै गुणी समावणिया, गुणां नूं गाउंदे होए
ਤੇ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀਏ ਗਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। जरा जे अगे बच्चे बच्चा चंचल है, अच्छा पापा मैं बर्गर खवा दो, कहते पुत्र हुणे लै देना मां। अच्छा पापा थोड़ा जे अगे गए मैं आइसक्रीम लै दो, कहते हुणे लैके दे रहे हैं। एडी देर सामने रश आया, कोई सिनेमा का शो छुटिया, भीड़ बाहर आई, बच्चे की उंगल प्यो तो छुट गई, बच्चा अलग हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा संगत जी, असी अपने नाल किवें रिलेट करना है इस पंक्तियां। उन्होंने जब बच्चे की उंगल छुट गई, प्यो अलग हो गया, प्यो अपनी जगह परेशान है पर बच्चे रोई जा रहे हैं। हूँ किसी ने चुक लिया, वो रोंदे कि मैं पापा चाहिए, रोंदे रोंदे पापा, जेड़े लोगों ने चुकिया अच्छा पुत्र कोई काम कर, जब तक पापा नहीं मिलता तू बर्गर खा लै। नहीं बर्गर नहीं खाना, मैनू पापा चाहिए। अच्छा झूले ले लै, नहीं मैनू पापा चाहिए। अच्छा आइसक्रीम खा लै, नहीं मैनू पापा चाहिए। कब एहसास होया? जब प्यो तो उंगल छुटी। जब तक उंगल फड़ी सी तब तक कोई प्यो की कीमत नहीं सी पता। असी सारे परमात्मा का रूप आ, मन तू जोत स्वरूप है, आज है, हुणे है, बढ़ेगा नहीं। अपना मूल पछाण, बस पछाण नहीं पा रहे। असी गुरुद्वारे आते हैं, असी परमात्मा को गड्डी मंगने, मकान मंगने, बिजनेस मंगने, घर दे विच सुख शांति मंगने। काश कि जो छोटे बच्चे वांगू सानू प्यो को प्यो मंगना है। जब कभी असी इस अपने आप चेंज लैके आईए, हे वाहिगुरू तू मेरे घर चा, जे वो आ जाएगा फिर की होएगा? नस मंजो किल विखो नट जो इथों दी कला कलेश होना ही चाहिए। क्यों? करता घर आया, घर के विच करता एंटर हो गया है। घर मतलब शरीर, हृदय। मैं पहले आप जी को बेनती की थी, मैं फिर दोहरा रहा, अगर किसी ने पंक्ति नोट करनी हो, मैं देख रहा हूँ बैठे हुए ने कलम, बहुत अच्छी गल है, साढ़े से आदत होनी चाहिए। मैंने एक एमरसन की गल याद आ गई, एक राइटर है बहुत बड़ा, वो अपनी बहुत बेशमुली गल लिखता है। वो कहता है कभी भी जब कोई क्लास के विद्यार्थी आए तो उहदे हाथ दे विच दवात, पेन, कलम और कागज, किताब जरूर होनी चाहिए है, क्योंकि एक चंगा वाक हज़ारां दिलों दे विचों हुंदा होया सैकड़े सालां दा सफर तय करता है। संगत बड़े वडमुले वाक ने होते। असीं उदाहरण देखना में गुरु नानक पातशाह ने 24,000 मील की दूरी तय की। जिस भी शख्स को गए उन्होंने जिंदगी एक बार मिले, दोबारा नहीं मिले। जब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी लगभग 300 साल बाद उस रूट से गए ने, असम पहुंचे ने, डुगरी पहुंचे ने, बांग्लादेश पहुंचे ने, उठे गुरु नानक साहब होके आए सी। 300 साल बाद संगत कह रही है कि पातशाह बड़े चिर बाद आए, कि शक्ल तो एक नहीं सी, की रहा वो वाक रह गए उन्होंने दिल दे विच। ए जिहड़े अखर ने ते मिट जाणगे, खुर जाणगे, खत्म हो जाणगे, पर जिहड़ा इहदा प्रभाव है, मैं फिर एमरसन की गल दोहरादा, एक चंगा वाक सैकड़े सालां दे विच हज़ारां मील का सफर तय करता है। जब भी कभी कोई
क्लास दे विच है, क्योंकि गुरुद्वारा एक क्लास है। सानू अजीब तो लगेगा असी गुरुद्वारे को पूजा स्थान बना लिया है। मैनू क्षमा कर देना, गुरुद्वारा पूजा का स्थान नहीं है। गुरुद्वारा सिखण वास्ते है। आई पत्थी सगल जमाती, सारिया असी जमाती हाँ, एक क्लास के स्टूडेंट हाँ। अगर गुरु नानक साडा गुरु है तो गुरु नानक साडा गुरु भाई भी है। किवें जब गुरु नानक साहब को सवाल होया सी कौन गुरु किसका तू चेला, तो उन्होंने तो जवाब दिता सी शब्द गुरु सुरत तुम चेला। साडा गुरु शब्द है। गुरु नानक का गुरु भी शब्द सी। जे साडा दोनों का गुरु इको है तो गुरु नानक जिथे मेरे गुरु हैं उत्थे मेरे गुरु भाई भी ने। असी इको ही क्लास के स्टूडेंट हाँ। असी शब्द गुरु की अगवाई दे विच असी सिक्ख्या लै रहे हैं। पर चेते रखना, जे शरीर गुरु नहीं है तो शरीर सिख भी नहीं है। असी सुरत करके असी प्रेजेंट हाँ तो सिख हाँ। जे साडा ध्यान भटक गया, असी सुरत तो शब्द के नाल मिलाप नहीं कर सके तो असी सिख भी नहीं है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्त ते जन्मा। साडे कर्मा करके, साडे विचारा करके जिहड़ा मन पैदा होंदा वे, अगर वो चंगे पासे लगा वे ते देवते वर्गा मन है, वो मन जोत का स्वरूप है। ते जे मन भैड़े पासे चल रहा वे ते मन खुटहर तेरा नहीं विसासा है, फिर मन कुत्ते वर्गा वे, मन जानवर वर्गा वे। संगत जी मरण तो बाद जानवर फड़ांगे कि नहीं है तो गुरु साहब को पता है। मैनू कोई हक नहीं है कहने का कि मरण तो बाद कोई लेखा जोखा नहीं होता, पर जितनी गुरबाणी को विचारिया वे समझिया वे लेखा जोखा होने है, मिलाप होना है। सानू सैकड़े ऐसे प्रमाण गुरबाणी तो मिलते हैं। मैं एक आप जी साझा किया सी, हुए हुए जो मुक्त दोगे मुक्त ना जाने कोई ना। जे मरण तो बाद मुक्ति मिल गई तो मैनू कौन दसन आया मुक्ति मिल गई। एक होर फरमान बेड़ी जी का शब्द है, कहते हैं कहे बेड़ी सुनो रे भगतो मरण मुकत किन पाई। किन्ने मरण तो बाद मुक्ति पाई है। सानू आज मुक्ति चाहिए है, जीते जी मुक्ति चाहिए है, प्रेजेंट चाहिए है। इस पंक्तियां दे राही असी अपने नाल जब कोरिलेट करांगे तो आवांगे कि मेरे ख्यालात मेरे मन के जिहड़े फुरने ने, जिसको असी अगे पढ़ांगे पंक्तियां दे विच जदों पंक्तियां दे विचार आउणगीआं कि पाताला पाताल लख आगासां आकाश। कदी ते मेरा मन इन्ना ऊंचा चला जाता वे जिवें आकाश की उड़ानियां मार रहा। कदी मेरा मन करता वे कि अज मैं 3 बजे उठ के गुरु साहब के दर्शन दीदार करा, गुरु साहब का पाठ करा। तो कदी दिल करता क्लब के जाके तो मैं डिस्को भी देखा तो मैं शराब भी पी लवां। साडे मन की अवस्था है। कबू जेड़ा ऊंच चढ़त है, कबू जाए प्याले। कभी आसमाना की उड़ानियां मार रहा है तो कभी पताल वर्गे नीवे ख्यालों के भी गर्क हो रहा है। जेड़ी ये 3 पौड़ियां ने, तीनों असीं अपने ते लैणियां ने। कदी मेरी अवस्था असंख जप वाली बन जाती है, कदी मेरी अवस्था असंख मूर्ख अंत बोल वाली बन जाती है। जब मैं गुरु तो टुटना वा, जब मैं गुरु के ख्यालों के मुताबिक जीवन नहीं जींदा। असी रास्ते दे भगती रोजाना पढ़ने आखा जीवा विसरै। आखा का क्या मतलब होता है जी? आखा जीवा स्टीक चुको ते आ मत लिखे ने आखा मतलब मैं कमा जे मैं परमात्मा का नाम कह रहा तो मैं जी रहा, जो दा नाम भूल रहा वा तो की होता है मैं मर जाना। मैं किसी के घर गया, मैं उन्होंने कहा आंटी तुहाडा बेटा नजर नहीं आ रहा। कहता पुत्र असीं ना उन्हें बेदखल कर दिता, पार्क की देखी है कढ़ दिता है।
मैं की कारण है? कहते साढ़े आखे च नहीं है। आखा जीवा जे मैं परमात्मा का हुक्म मनना वा उहदे आखे च जे मैं उहदा आखा मन रहा वा, आखा का मतलब कहना नहीं है, आखा जे मैं उहदा आखे लगना वा, उहदी गल मनना वा, ते मैं जी रहा वा, नहीं ते विसर मर जाऊं। कि शरीर मरदा? शरीर तो नहीं मरदा, मैं आत्मक तौर पर उसी टाइम मर जाना। नानक जित वेला जिस घड़ी जिस समय विसरे मेरा स्वामी, जिवें मेरा स्वामी अकाल पुरख परमात्मा मेरे तो विसर जाता, फिर की होता है? तित वेला मर जाएगी वो मेरा, मेरी तो उसी टाइम आत्मक मौत हो जाती है। हुण इस पंक्तियां दे राही गुरु साहब समझा रहे हैं, असी अपने नाल कोरिलेट कर रहे हैं, अपने नाल टुका रहे हैं। जिवें ख्यालात मेरे मन के बनते हैं, उवें ही मेरे मन की ट्रांसफॉर्मेशन जी है वो चेंज होती है। अगर पहले मेरा मन सुता सी, जो सी पंक्तियां पढ़िया सी कि नैणों नींद पर दृष्टि विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्मार। इस ग्रह में कोई जागृत रहे, सावत वस्तु अपनी लय, फिर अपनी बस ले लेंदा है। जो कोई जाग रहा है चेंज किवें होती है? जब असीं गुरु दे आखे लगने आ, फिर की हुंदा है? कोई मन जिहड़ा पहले सुता सी वो हुण जाग जाता है, कोई अखां जाग जांदियां ने। सरवण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को बंदा। गुरु प्रसाद लिखिया पर हरै, मन की वासना मन ते करे। तो वो चीज आया, वो अवस्था आई जब मैं गुरु की गल मनी, मैं गुरु के आखे लगा, फिर अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, फिर मेरे मन दे विच उस परमात्मा का नाम गुरदा नहीं, उसकी याद हरदम चेते च है। हुण छोटा वड्डा नजर नहीं आ रहा, हुण नूं सस का झगड़ा नहीं हो रहा, सस नूं दे विच धी नजर आ रही है, नूं दे विच सस नूं अपनी मां समझ रही है। अगर हस्बैंड वाइफ के आपस के झगड़े खत्म हो जाएंगे, जे असीं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक अकाल पुरख परमात्मा की जोत नूं महसूस करांगे, वो किवें महसूस होएगी? जब असीं परमात्मा कोलों उसके गुणां दी वो वाले गुण जिहड़े खुरदे नहीं हैं, वो वाले गुणां दी सांझ पावांगे। जे परमात्मा मैनूं बोलना वे, मैनूं मिठा बोलना पएगा। जो सतनाम है तो मैनूं अपने जीवन दे विच सच बोलना पएगा। जो करता पुरख है तो मैनूं क्रिएटिविटी करनी पेगी, अपने अंदर करते वाले गुण लैके आने पैणगे। जो अजूनी है, जूना विच नहीं आंदा, तो मैनूं चेते रखना पएगा मैं किसी नाल ऐसे बोल ना बोला कि वो समझे कि यह इंसान की जून चो निकल के दूसरी जून च एंटर हो गया। सूर गंद खांदा वे, जब असीं सड़कों ते गंद पाने असीं सूर की जून नहीं चाह। हाथी कामों होंदा वे, काम दे विच अन्ना हो जाता है। जब असी काम बस होने असी अज हुणे एट प्रेजेंट अपने मनुखा जन्म नूं छोड़ देने हैं, ते जब वाहिगुरू दे गुणां नाल सांझ पावांगे, जब उहदे नाल गुणां दी सांझ पावांगे, गुणां नूं धारण करांगे। संगत जी जपजी साहिब की पावन पंक्ति नूं चेते आ रही है, आप जी रोजाना पढ़ते ही हो कि बिन गुण कीते भगत ना होए। बिना गुणां नूं कीते भक्ति नहीं होती। जिहड़ा मेन मकसद है, जिवें कोई बच्चा स्कूल जाके उसका काम है पढ़ना, केवल कथा सुनान तक ना रह के असी जे गुणां नूं धारण करिए। जे हुण इत्थे अगर एसी लगे होण और एसी चल ना रहा है, लोगों को दिखाण वास्ते एसी है, ठंडक नहीं है।
साडे मन नूं पता वे मैं गुरुद्वारे जा रहा, पाठ कर रहा, पाठ सुन रहा वा, ते जे मेरे च बदलाव नहीं आया, मैं उवें दा उवें ही हाँ जो पहले सी, तो फिर पाठ करना भी कोई फायदे का सौदा नहीं होएगा। जिस टाइम बच्चा अपनी मां के प्यो नूं चेते रखता है तो लोग कहते हैं ऐना तुहाडे ही गीत गाता है सारा सारा दिन। ऐदा मतलब गान का मतलब चेते रखना। जे खाली गान का मतलब हारमोनीयम तबला हुंदा ते पातशाह ने आसा दी वार दे विच लिखना नहीं सी कोई गावे रागी नादी बेदी वो भांत कर तैनूं तो बड़े तरीके नाल कोई राग नाल गा रहा है, कोई नाद नाल गा रहा है, कोई वेद नाल गा रहा है, पर हुंदा की है नहीं हर हर पिजै राम राजे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ परमात्मा नहीं पिजदा। परमात्मा कद पिजदा जब ਅਸੀਂ सच्चे ਦੇ गुणां ਨੂੰ अपनाने ਆ। संगत जी ਅਸੀਂ पढ़े आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सब तो उत्ते सच है सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ गुरु पातशाह ਨੂੰ पूछे सच तो उत्ते कुछ है या सच सब तो उत्ते है? सुखड़े भक्ति बड़ी आद सच काल 3 प्रकार के होंगे ने, पर गुरु साहब 4 कालों की गल कर रहे हैं। आद सच जब तक समा नापन की चीज नहीं सी तां भी वो सच सी, वो सब तो उत्ते है। जुगाद सच जब जुग आरंभ होए तब भी सच सी, है भी सच हुण भी सच है, नानक होसी भी सच हमेशा सच रहेगा। पर गुरु साहब कृपा करो मैनू समझाओ कि सच तो उत्ते कुछ है। दूसरा बख्शिश करके दसते ने सच्चे ओरे सब को सच सब तो उत्ते है, पर ऊपर सच आचार सच तो उत्ते भी साडा सच्चा आचरण है। सच तो भी उत्ते है जब असीं सच्चे आचरण की गल करते हैं। एक्सट्रीम ट्रुथ तो भी उत्ते है साडा करैक्टर किवें दा है। मैं सिर्फ एक लास्ट गल आप जी नाल करांगा। संगत जी सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं पढ़ते, सारे पाठ नहीं करते। असी बड़े मान नाल कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब मानवता के गुरु ने, वो सानू देखते हैं साडा व्यवहार किवें है। जे असी सड़कों के उत्ते चंगा व्यवहार करने आ, लोकां नाल प्यार नाल बोलने आ, तो बड़े मान दे नाल कहणगे गुरु दा सिख जा रहा है। वो बाणी नहीं पढ़ेंगे, वो साडे करैक्टर को देखेंगे, अपने करैक्टर नूं अपने सुभाव को इन्ना मिठा करिए कि साडे विचों गुरु की बोलां की गुरु की मिठास की झलक आनी शुरू होए। सतगुरु कृपा करन बाणी पढ़ी सुनी साडे अंदर खिड़का जिहा भी अगर वसना शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता साडे चेंज आएगा। मैं तो एक सच्ची घटना दस रहा, मेरे घर की हैगी है। आज तो 10 साल पहले मैं दुकान तो आया तो वाइफ ने चावल एक पतीले च पा के सिंक च रखे थे, तो टूटी चल रही थी, पानी भरिया हुआ सी, तो मैं टूटी बंद कर दी। तो मैनू आके कहते टूटी तुसीं बंद की है? मैं कहा वो भर गया सी। कहती भरन वास्ते नहीं सी, ज्यों ज्यों पानी जाता जाएगा इसको निकलता जाएगा त्यों त्यों चावल साफ होते जाएंगे। जो जो असी बाणी पढ़ते रहांगे, बाणी को सुनते रहांगे, थोड़ा थोड़ा करके साडे च बदलाव आता रहेगा। कोशिश करिए जे पानी दे नाल चावल धुल सकते हैं तो कि बाणी दे नाल साडा मन नहीं धुल सकता। सतगुरु कृपा करन असी जो बोलिया जो सुनिया उसके उत्ते असी अमल करिए। सो होइयां बेअंत फुल्लां गलतियां दी खिमा। चरणजीत सिंह जी का प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने संगत के चरण दर्शन का सुभाग प्राप्त करवाया। एक बार फिर तो हुई बेअंत फुल्लां गलतियां दी खिमा। गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।